مجھے میرے والدین نے مار مار کر سڑک پر پھینکائی۔ وہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ مجھے ہرگز بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا جو ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ میں تو ایک معذور لڑکی تھی جسے دنیا بھر کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ والدین تو مجھے زہر تک دے دیا تھا۔ ان کی نظر میں تو میں مر گئی تھی، مگر ایک نیک انسان کی نظر مجھ پر پڑی، اسی نے میری جان بچائی اور پھر وہ اپنے ساتھ ہی مجھے گھر لے گیا۔ کچھ سال بعد میں 17 سال کی ہوئی تو اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نکاح کے بعد تو میں بہت خوش تھی، میں اس کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس طرح سے ایک روز میری نوکرانی مجھ سے روتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی مجھے یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا ظلم؟ تب وہ مجھ سے کہنے لگی، آج رات آپ خود ہی اپنے بستر کی چادر اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ساکشی آپ پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ نوکرانی کی بات سن کر رات کو شوہر سونے کے بعد جیسے ہی میں نے اپنے بستر کی چادر ہٹائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری جان ہی نکل جائے گی، کیونکہ چادر کے نیچے تو میرا نام عافیہ ہے۔ میرے بابا جاب کرتے تھے، میری ماں کو بھی جاب کرنے کا بہت شوق تھا، مگر بابا انہیں اجازت نہیں دیتے تھے جاب کرنے کی، کیونکہ اماں بہت خوبصورت تھی اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بابا انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میری اماں تو میرے بابا سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ وہ بابا سے کہتی میرے قابلیت سے جلتے ہو تو اس لیے مجھے باہر جا کر کمانے نہیں دیتی۔ بس اسی وجہ سے دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا، ہر وقت لڑتے جھگڑتے تھے۔ اماں کی باتوں میں تو زیادہ دخل ان کے دوستوں کا تھا، جو ہر وقت اماں کے سامنے مہنگی چیزوں کا دکھاوا کرتی تھی۔ ان مہنگی چیزوں کو دیکھ کر اماں کے دل میں بھی خواہش جاگ اٹھتی کہ وہ بھی اسی طرح سے زندگی گزارے اور مہنگی چیزوں کا استعمال کرے۔ انہیں اپنی غربت بہت عجیب لگتی تھی، لیکن ہمارا گھر میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابا بھی اچھا خاصا کماتے تھے، ان کی پیسوں سے ہمارے گھر کا نظام اچھی طرح سے چل رہا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو دونوں ہی بہت خوش تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں معذور ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام لگانے لگے۔ انہیں معذور بچہ نہیں بلکہ تندرست بچہ چاہیے تھا۔ امی کو ان کے دوستوں کے سامنے یہ بتانے میں شرم محسوس ہوتی تھی کہ ان کی بیٹی معذور ہے۔ ویسے بھی ابا تو مجھے بوجھ ہی سمجھتے تھے، میں ہر وقت روتی رہتی تھی اور ایسے میں مجھے میری دادی ہی سنبھالتی تھی اور میں ایسے ہی بڑی ہو گئی اور مجھے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بچپن سے ہی اماں ابا کی لڑائی جھگڑے دیکھتی آ رہی تھی۔ اماں کی خوبصورتی مجھے بھی وراثت میں ملی تھی۔ میرے اتنے خوبصورت ہونے کا کیا ہی فائدہ ہے جب کوئی پیار ہی نہ کرے اور آپ کو بوجھ سمجھا جائے۔ ابا تو یہ بھی کہتے تھے نہ جانے کس گناہ کی سزا میں ہمیں یہ معذور لڑکی ملی ہے، حالانکہ میں تو ان کی ایک ہی اولاد تھی اور میرے بعد ابا مزید کوئی اولاد نہیں چاہتے تھے۔ بس مجھے دیکھ کر اتنا ہی کہتے کہ ہائے اتنی خوبصورت بچی ہے، کاش یہ بچی معذور نہ ہوتی اور اپنے ٹانگوں سے چل پاتی، نہ جانے کون اس سے شادی کرے گا۔ میرا بھی دل چاہتا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار کرے، مگر وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے پیدا ہونے کے بعد تو وہ آپس میں طلاق لینا چاہتے تھے، لیکن ان کی طلاق کی وجہ میں ہی تھی۔ وہ تو مجھے کسی یتیم خانے میں جمع کروانا چاہتے تھے، لیکن میری دادی نے ایسا کرنے سے میرے ماں باپ کو روک دیا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یتیم خانے میں رہوں۔ میری دادی ہی میرا سب کچھ تھی۔ پھر یتیم میری دادی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی تو مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ ان کا علاج بھی ہو رہا تھا اور پھر دادی ایک ماہ کے بعد مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میری دادی کے انتقال ہونے پر میں بہت زیادہ روئی تھی، کیونکہ ایک دادی ہی تھی جو مجھے اس گھر میں بہت پیار کرتی تھی۔ وہ تو اب مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھی۔ میں اتنا زیادہ روئی کہ میں اللہ سے کہنے لگی مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ دادی کو فوت ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ اماں ابا کے بیچ میں لڑائیاں مزید بڑھ گئی تھی۔ اماں تو اپنا سارا غصہ مجھے مار کر ہی نکالتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ نہیں کروایا تھا، کیا پتا میں ٹھیک بھی ہو جاتی۔ اب تو اماں ابا کی غیر موجودگی میں کسی غیر آدمی سے ملنے لگی تھی۔ اماں نے تو مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ پھر ایک روز میرے اماں اور ابا کے بیچ میں ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد اماں میرے پاس آئی اور پیار سے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی
मुझे तो इस बात से हैरत हुई थी कि आज अम्मा को क्या हो गया था। वो इतने साल बाद आज अपने हाथ से मुझे खाना खिला रही थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अम्मा मुझे खाने में जहर मिलाकर खिला रही है। खाना खाते ही मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी और जैसे मेरे वालिदैन को लगा मैं मर गई हूँ। तब मुझे वो उठाकर बहुत दूर जगह ले आई थी। इस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने तो सुना था कि माँ बाप को अपनी औलाद बहुत अजीज होती है, वो खुद तो मुश्किलों में पड़ते हैं, लेकिन औलाद को ये कांच भी आने नहीं देती। मुझे जहर देते वक्त मेरे माँ बाप के हाथ पैर भी नहीं कांपे थे। शायद इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई थी। वो अपना सफर मुझसे अलग करना चाहते थे, लेकिन मैं भी तो इनके रास्ते में कौन सा रुकावट बनी हुई थी जो ये मुझे मारने से भी पीछे नहीं हटते थे। वो शायद ये समझ चुके थे कि उन्होंने मुझे मारने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। मगर मैं सच में मर गई होती, मगर ऐन वक्त पर मुझे किसी शख्स ने बचा लिया था। मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। मैं बहुत हैरान हुई थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो अम्मा अब्बा ने भी मुझे गंद में फेंक दिया था। मेरे लिए वो साहिबान था। इसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे अम्मा अब्बा मेरी माजूरी की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। आदमी बहुत खूबसूरत था, वो मुझे अपने घर ले आया। इसका घर भी बहुत खूबसूरत था, वो मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने इससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता, तो इसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई, काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से मुलाजिम है। फिर वो मेरा भी बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 17 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में इसे पसंद करने लगी, लेकिन कभी कहा नहीं था। फिर एक रोज अचानक इसने मुझसे खुद निकाह का बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी, इस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर यह सब हकीकत थी। फिर इसने मुझे बहुत सी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज लेकर दी। एक दिन इसने मुझसे शादी कर ली। मैं अब इसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं इसके घर की मालिक थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे अल्लाह ने मुझसे माजूर को भी इतना अच्छा हमसफर दिया था। इसका नाम अयाज था। रोजाना काम से वापसी पर मेरे लिए ताज़ा गुलाब का फूल लाजमी लाते थे। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। मैं रोज इनके लिए सस्ती सवरती थी। इसने बताया इसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत अमीर है। मैं बहुत मुतासिर हुई। मुझे अपने साथ ले जाते हुए इन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में इनके साथ जाती थी। इनके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने एक माजूर लड़की से शादी कर ली। मैं खूबसूरत थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की मिद्दत कम होती है, किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। मैं और अयाज एक दूसरे के लिए काफी थे। एक रोज मुलाजिमा खाना देने आई तो बोली, बीबी जी मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वो बोली, बीबी जी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, बीबी जी मैं कुछ नहीं बता सकती, साहब से मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखिएगा प्लीज साहब को कुछ मत बताइएगा वरना वो मुझे काम से निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई कि मेरे शौहर के काबिल एतबार मुलाजिम थी। मुझे कहीं जाना होता तो वही मेरी व्हील चेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। इस रात मैं अपने शौहर के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। शौहर के सोने के बाद जो ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी 4 गुड़ियाँ पड़ी थी। इन सब की टांगे टूटी हुई थी और इन पर सुइयां लगी हुई थी। वो सब देखने में भी मेरे जैसे लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी सोचें उलझी हुई थी। मैंने
अपने शौहर से पूछना चाहा, फिर इस नौकरानी का डरा सहमा रूप नजर आया। इसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहती थी कि बीबी मैं आपकी खैर ख्वाह हूँ, लेकिन आपने साहब को बताया तो वो आपके साथ भी बुरा करेंगे, मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। मैंने अगली सुबह अपनी इसी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के वक्त वहाँ से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है, क्यों मुझसे छुपा रही हो? वो बोली, बीबी जी आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियाँ आई थी, वो सब साहिब की हुस्न से मुतासिर थी। साहिब ने इनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर वो अपनी बात काट कर बोली, बीबी जी आप बहुत मासूम है, आप साहिब जिससे बचकर रहें। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ इससे पहले से क्या होगा? वो बोली, बीबी जी पहले मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहिब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वो बीबी जी फौत हो गई थी। साहिब ने कहा कि किसी को नहीं बताना, हम सबको भी बताने से मना किया है। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, बीबी आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वो बोली, बीबी जी पास ही एक NGO है, वहाँ पर यतीम और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चली जाए, यहाँ पर तो आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वो पहले देखकर और मुलाजिमा की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल मानने से इनकारी था। मेरे शौहर का इतना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए फिक्रमंद था। इसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वो कैसे ये सब कर सकता है? मुझे समझ न आया कि मैं किसी का यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी एक मुलाजिमा को लेकर आई, इसने भी वही कहानी सुनाई। अब तो मैं सच में डर गई थी और इसी दिन घर से भाग गई। मैं NGO जा रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वो मुझे जहर न दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में खौफ देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं समझी तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे करीब आने लगी, मुझे इन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ कर दो, इस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारा बाप मुझसे अलग हो गया है। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप घर जाकर मुझे मारेंगे नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। वो रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने इनके गले लगकर खूब आंसू बहाए। वो मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, अब्बा और आपको तलाक क्यों हुई? अम्मा बोली, तुम्हारे अब्बा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे, उन्होंने धमकी दी थी अगर मैंने तुम्हें मारने में इनका साथ ना दिया तो वो हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए मैंने इस डर से इनका साथ दिया था। मुझे इस कदर कमजोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारा बाप दूसरी शादी करके घर आ गया। तुम्हारे मामू ने कोई ताउन नहीं किया, सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी कर सकता है, तुम इसके साथ रह लो। अम्मा कहती थी कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती। तुम्हें ये कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। जमीर की अदालत में एक पल के लिए सुकून नहीं था। तुम्हारे अब्बा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में थी। मुझे तुम्हारे अब्बा का एक दोस्त पसंद था। समझ गई कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद से शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी मिल भी गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की, तुम मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने जोड़े
औलाद की नेमत को तरसते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं इनको मजीद शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए माफ कर दिया। वो खुश हो गई। अम्मा बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने अरसे तुम कहाँ रह रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे तब मुझे एक शख्स अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर इसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन मुझे पता चला कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वालियों ने बताया कि इसने पहले भी बहुत सी शादियाँ की हुई हैं। वो इनकी हम शक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर चंद दिन बाद ही इनकी बीवी मर जाती थी। तभी मैं वहाँ से भाग गई। अम्मा रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ कर दो। मैंने कहा कि अम्मा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब माँ बोली, इसमें मेरा ही कसूर है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला, मैं दिन रात तुम्हें भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम्हें डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं इनके घर रहने लगी थी। वो मुझे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। अम्मा अब भी वैसे ही खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता इनकी उम्र और चाल चलन से। वो मेरी बहन लगती थी। अब भी इन पर कई मर्द मरते थे। अम्मा ने बताया कि वो जहाँ जॉब करती हैं, ये घर इन्हीं से कंपनी की तरफ से मिला है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वो किसी बड़े अहदे पर जॉब करती हैं। मुझे कहा कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे शौहर से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं न कहीं शौहर को छोड़ने का दुख जरूर था। मैं इस शख्स की शख्सियत से अब तक नावाकिफ थी। अम्मा वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैंने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया है, सब मुझे नीचे दिखाती थी। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और वो चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी, किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे अम्मा के कमरे से आवाजें आ रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि सुनो तो वो क्या बातें कर रही है। रात के इस पहर अम्मा के कमरे में कौन हो सकता है? अम्मा ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे ताल्लुक तोड़ दिया है। सुनने लगी किसी मर्द की आवाज आ रही थी। अम्मा को वो शख्स कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वो अम्मा का बॉस था, लेकिन रात के इस पहर वो भी अम्मा के कमरे में। मुझे ये सब ठीक न लगा। फिर वो कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगे। अगर मैंने तुमसे अपना घर और गाड़ी खींच ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, इसको घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में बदगुमानी पैदा की, झूठे पुतले बनाकर रखे। ये अपाहिज लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, ये मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन ये आदमी मेरे शौहर का बाप था। मेरी अम्मी बोली, जैसे तुम बोलोगे वैसा ही होगा, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बेटी के दिल में जगह बना ली है, बहुत भोली भाली है, मैं इसे साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपनी कम अक्ली पर गुस्सा आया कि मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर पर एतबार नहीं किया। मैं कितनी आसानी से इनकी जाल में आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है वो अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सोची समझी चाल थी। वो नौकरानियां भी मिली हुई थी। मैं इनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वो 4 गुड़ियां मेरी हम शक्ल रखी होगी और लड़कियों की कहानी भी मन घट थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हो गया। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन अम्मा हाफिज गई तो इनकी मुलाजिमा मुझ पर नजर रखने के लिए आ गई। मैंने इससे कहा, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, मुझे मेरे शौहर के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत जालिम है। मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी, इसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाया हुआ था। मैंने कहा कि वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं, मेरा घर तबाह करना चाहती हैं। काम होने के बाद इस अमीर बंदे से शादी करके वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो। इसे भी शायद मुझ पर रहम आ गया, इसे पैसों की जरूरत थी, तभी वो मान गई। मैं गाड़ी करवा कर सीधा शौहर
के पास आ गई। वो खूबसूरत शख्स मेरी याद में आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला कि तुम किधर चली गई थी बगैर बताए? मैंने तुम्हें किधर किधर नहीं ढूंढा। ऐसे कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझे कहा था तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर इनको मार देते हो। इसने मेरे हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे। जब मैंने इस मुलाजिमा को ढूंढा तो वो पूरे घर में नहीं थी। मेरे शौहर तो इन सबसे लाइन थे। जब मैं घर छोड़कर गई तो इस नौकरानी ने ही मेरे शौहर को बताया कि मैं अपने अम्मा अब्बा के पास चली गई हूँ। इसने मेरे शौहर से कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया। गलत इंसान पर एतबार करके हमेशा इंसान नुकसान ही उठाता है। जिस लड़की के माँ बाप ने इसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो वो लड़की ऐसे ही बन जाती है। मैंने कहा मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा किया था, दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारा बाप मुझ जैसी मासूम लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करना चाहता। इन्हें तुम्हारे हम कदम चलने वाली लड़की चाहिए जिसमें कोई नुक्स ना हो। वो मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहता है कि पहले वो मेरी तलाक करवाएंगी। मेरा शौहर सारी हकीकत जानकर हैरान रह गया। वो बोला मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है इसलिए इनसे अलग रहता हूँ। मैं इन्हें अय्याशी की आदत है। हर खूबसूरत लड़की को वो शादी के ख्वाब दिखाते हैं, अपने पैसों से इस लड़की को अय्याशी करवाते हैं और जब अपना मकसद पूरा हो जाए तो छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो अम्मा को भी सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे शादी नहीं करेंगे। मेरे शौहर ने कहा मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस नौकरानी को काम से निकाल दिया था। मेरे शौहर ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग जो दौलत की लालच में आकर आपका घर तबाह कर दें पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सब असलियत का पता चल गया था। वो भी मेरे शौहर के घर आई। इन्हें फिक्र थी कि अगर मैंने सलाह कर ली तो कहीं इनके हाथ में आई दौलत वापस न चली जाए। हकीकत में वो किसी को प्यार ही नहीं करती थी। वो मेरे पास आकर मुझे कहने लगी तुम मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवाऊंगी। मैंने कहा कि आपका असल चेहरा मैं देख चुकी हूँ, अब मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ थी जो आप पर एतबार किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप एतबार के लायक नहीं हैं। वो बोली क्या बोल रही हो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ, तुमने मुझे माफ कर दिया है। मैंने कहा कि मैंने आपकी इस रात सारी बातें सुन ली थी। अगर आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वो घबरा गई, घबराई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ किया जाए। मैंने इन्हें जान से मार देने की जुर्म में करवा दिया था कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी जिंदगी में सुकून कभी नहीं रहने दिया था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब मामला ठीक हो गया था। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं न मिली। तुम काश मुझ पर यकीन कर लेती। तुम्हारी माँ और मेरा बाप दोनों ही गलीज इंसान हैं। मैं इन रिश्तों से निकल आया हूँ। इस दुनिया में वाहिद तुम हो जो मेरी हो। मुझे शर्मिंदगी हुई, मेरा शौहर मुझसे इतना प्यार करता था फिर भी मैंने इसका एतबार न किया। मेरी माफी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अब हम खुशी रह रहे हैं। मैं अपने में इलाज के लिए अपने शौहर के साथ बाहर के मुल्क आ गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था कि इसके बाद ये चल फिर सकती है। मेरे शौहर मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करती कम था। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, अपने पाँव पर चलने लगी थी। मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा किया था कि इसने मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर अदा किया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाहर के मुल्क आ गई थी।